Hello, 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 hello. Mic testing, one, two, three. Hello, good morning, everyone. Hello, I hope you can see me and hear me. I am audible. Thank you very much. So, yes, good morning once again to everyone. I hope everyone has joined in. Many people are still joining, so I'll wait a little bit for them. The participants are increasing. It's 11 o'clock sharp. And as you know, today we are supposed to have a demo lecture of FYGC Commerce subject economics. So a very good morning to everyone once again. I hope everyone has joined in. Okay, very good. Okay, everyone. So after a very hard-working year, because you had prepared yourself for the 10th board exams, the exams were not conducted. That's a different matter altogether. After a hard working long year of standard 10th, in fact 2020-21, now after 10th standard you are to go in a new level of studies, or you can say higher education. And in this higher education you are going to decide, first of all, what stream you are going to select. As far as the three broad streams are concerned, other than the engineering or medical or else, that's a different matter. But the three main streams, especially regarding the graduation course, at least if I say for the time being, is, as you know, science, commerce and arts, the three main streams. Now you people have decided, or most likely you are going to decide about commerce stream as such. And definitely, I need not elaborate on this point that commerce stream has many options available at your disposal to go ahead and move forward in your education ladder, especially chartered accountancy, company secretary, law graduation, post graduation, and many more. So आपने कॉमर्स के बारे में आई होप सो डिसाइड किया है. So now, as you know, for commerce, at least first level अगर देखा जाए तो वो 11th and 12th है. Well, my name is Professor Arshad Khan. I am teaching in reliable classes from last 24 years, 2 and 4, 24 years. My specialized subject for you people is going to be economics. I'll come on that, don't worry. But let us first talk little about what the future course of action or planning should be on your part. So I will also like to ask some questions to you, and I will please request you to answer. You can answer on the chat box. If you have any concern or any doubt, you can write them in the chat box. The pop-up will come on my screen and I will be able to answer your questions. Okay, that's why I have muted everyone, because it will be more of a communication by way of writing in the chat box, especially for this lecture. So guys, as you know, because of the pandemic of coronavirus, we are forced to hold these lectures as online lecture, and we are praying to God, and we hope that the government also opens up the offline system of coaching as early as possible. Taking into consideration, as I know that the last year you have put a lot of efforts, as I said, and you were 100% prepared for your 10th board exam. Whether the exam was held or not held, that's a different matter altogether. And definitely all are positively looking towards their future studies, higher studies. तो अब हम सीधा हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं. जैसे हमारी बात हुई है, now you are opting for commerce, and for commerce the first basic thing is FYJC and SYJC, 11वीं और 12वीं, 11th and 12th. So you will be appearing for FYJC and SYJC by choosing a college and preparing and studying
and passing with flying colors 11th and then your 12th boards. And on the basis of that, your future more higher studies will be decided. You may opt for career courses like professional courses like chartered accountancy, company secretary, law graduation. You may go for graduation first like Bachelor of Commerce, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Banking and Insurance, Bachelor of Mass Media, Bachelor of Management Studies. बहुत सारे कोर्सेज हैं 12th के बाद आगे, लेकिन एक बात पक्की कि सब कुछ 11th और 12th के ऊपर है. मैं ऐसे नहीं बोलता सब कुछ 12th पे ऊपर है, मैं बोलता हूँ 11th और 12th पर. इसका रीजन ये है कि 11th का अगर बेस नहीं है आपका तो 12th में आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम आते हैं. And we are not here just to join for just for the name of passing for the name's sake. We have to score or we have to get very, very good marks. In fact, our past students have even gone up to merit list rankings also, and several college toppers, no doubt about that. The level classes more than 25 years have passed, and specialized coaching for commerce, you know that, from FIGC to CA final. And no doubt about that, for this year, FYGC, we are starting or we have started with demo lectures initially. And now you are a part of this lecture. So let us talk little bit about FYGC. देखो भाई, अब आप 11th में कॉमर्स ले रहे हो तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि आपका सब्जेक्ट्स क्या होगा. शॉर्ट में मैं कहता हूं, फिर मैं मेरे सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा डायरेक्टली. आपको अच्छी तरह पता होगा. I may request you to write in the chat box about the name of the subject if you know about FYGC. Welcome everyone. Now more people are joining in. About FYGC आपको अगर subjects की knowledge है तो Maths very good, IT, bookkeeping and accountancy, English, OC also called as Organization of Commerce, Eco also called as Economics. हाँ, थोड़ा ऑप्शंस भी है. मैथ्स की जगह एसपी है, आईटी की जगह हिंदी है, इंग्लिश तो कंपलसरी है भाई, इंग्लिश कंपलसरी है, आईटी की जगह हिंदी है, फ्रेंच है, एंड सो ऑन. तो बेसिकली आई कैन से टोटल देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके पहले मैं 4 कंपलसरी बता देता हूं. इंग्लिश, बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 आते हैं. और 2 ऑप्शन सब्जेक्ट्स में से कैटेगराइजेशन है, मैथ्स ले लो या एसपी ले लो. एसपी को कहते हैं सेकेंडरी प्रैक्टिस, बट वी ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर मैथ्स व्हिच इज अ डेफिनेटली बेटर ऑप्शन फॉर योर फ्यूचर स्टडीज आल्सो. एंड यहाँ पर आप या तो हिंदी ले लो या आईटी ले लो या फ्रेंच, डिपेंडिंग कॉलेज में ऑप्शन है कि नहीं. आईटी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को. ठीक है, तो ये हुए आपके 6 सब्जेक्ट. ठीक है, on the basis of now we also don't know how the government is going to decide the method of, clear नहीं हुआ है method of admission of 11th standard, but let us hope whatever they will keep, entrance test या जो भी रहेगा, with flying colors we believe that you will pass and then you will be selected or you will choose the college of your choice. Now college तो अपनी जगह है, उसमें कोई शक नहीं है, but आपको एडिशनल एक्सपर्ट लेवल कोचिंग की बहुत जरूरत है to score very good marks in your FYGC as well as SYGC so that you can prepare for your future studies. देखो 11th 12th का बेस इसलिए जरूरी है कि आगे आपको प्रोफेशनल कोर्स या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की भी अगर मैं बात करूं तो बेस होना बहुत जरूरी है. जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएम है कि नहीं, अपना बीएमएस, बहुत सारे कोर्सेज हैं. होटल मैनेजमेंट वगैरह भी है, अलग से वो लाइन भी है. और अलग से आपके प्रोफेशनलिज्म में सीए, सीएस, आपने नाम तो सुना होगा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ग्रेजुएशन वकील बनना एंड सो ऑन. तो नो डाउट कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एज आई सेड ऑलरेडी 24 इयर्स ऑफ एक्टिव टीचिंग हो गई है, तो दिस विल बी माय 25th ईयर ऑफ टीचिंग. जो मैंने काउंट किया तो ये मेरा 25th ईयर होगा. ये एकेडमिक ईयर अभी शुरू हो रहा है, राइट? This is 21-22, 21-22. And from the very beginning, I have been taking the subject of economics, no doubt about that. तो भाई सब्जेक्ट की कुछ बातें हमने की. कॉलेज के लिए भी हम पॉजिटिव हैं. You will get a college of your choice based on your hard work, your commitment, your dedication, and so on. And as I told you,
आपकी ये जर्नी के साथ रिलायबल क्लासेस आपके साथ जुड़ेगा, जहां पर विथ फ्लाइंग कलर्स एंड विथ very good marks you have to score in these 2 years. Especially in FYJC, we will like definitely that you may turn out even as college toppers, and many have been in the past. And in 12th you can even go up to merit list. मतलब ये कि ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, एंड नहीं है। वो आपको एटीट्यूड पैदा करना होगा और उसके लिए रिलायबल क्लासेस आपकी मदद करेगा, है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, इट इज द एटीट्यूड एंड नॉट द एप्टीट्यूड दैट टेक्स यू टू द ऑल्टीट्यूड. So in other words, now about our subjects. As I said, total there are 6 subjects. As far as I am concerned, I will be talking with you about economics. Very good. Now guys, the government publishes its own sets of textbooks. It has its own set of textbooks which prescribes or gives the syllabus. कि सिलेबस क्या होगा. गवर्नमेंट ने अपनी बुक बनाई है और उसमें सिलेबस डिफाइन किया है, नोट्स वगैरह दिए. बट एज यू नो, स्कूल में भी आपने देखा होगा, many times the government textbooks are not 100% conceptual clear. There is confusion in language, there are lack of explanation at certain places, the answers are not in question answer form, the objective answers are not given at all, distinguish, agree, disagree, आप theory subject में अगर जानते हो, are missing. So there is several lack of things in those textbooks. That is why हमारी classes, reliable classes, अपने खुद के subject के notes देता है. और ये रहा आपके सामने, देखो स्क्रीन पे मैंने डाल के रखा है, न्यू बुक मैंने रिवाइज कर ली है. और जैसे आप ज्वाइन करोगे, ये आपको रिलायबल क्लासेस की तरफ से अलग से स्टडी मटेरियल मिलेगा. This is first I will like to show you the index, not index, in fact the cover page of our textbook. Then I will come to the subject. ये आप देख सकते हो, प्रोफेसर भवानी हमारे सर, रिलायबल क्लासेस FYGC इकोनॉमिक्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट जो भी है. एंड वी हैव ब्रांचेस इन अहमदाबाद, बोरीवली एज वेल एज विरार. You may be knowing about our classes. As I said, more than 25 years. In fact, I believe many of your brothers, sisters, cousins, uncles, aunties may also have been a part of reliable classes in the past. In fact, we have seen even the second generation of students coming to reliable classes, जिनके parents एक time पर reliable के student थे 90s में वगैरह. तो अब उनके बच्चे जो हैं वो अब second generation हम कह सकते हैं reliable में आना start हुए. So as far as experience is concerned, as far as teaching is concerned, as far as material is concerned, you will get the best. There is no doubt about that. And that is why we are conducting this demo lecture. But I'm giving you a brief introduction about the same also. So these are our branches. This is the cover page of our book that you will be having. And I will also, after the cover page, I will show you the index page as far as this book is concerned. Ye I have fully revised, and this is now going for printing, and this will be given, has already gone for printing, and this will be given to the students who join reliable classes as a study material. And let me just come to this index. Okay, fine. Now as far as economics is concerned, I'm going to talk about that, but let me tell you, the syllabus is quite vast. You can see here, this is the index. ये तुम्हारी असली बुक है, मेरे पास यहाँ सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर पे है, और इसका प्रिंट होकर आपको बुक फुल फ्लेज मिलेगी. You can see it's 100% ready. It is 100% revised, updated, upgraded for you for this year 21-22. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास करीब 10 टॉपिक्स हैं. करीब क्या दिख ही रहा है, 10 टॉपिक्स है, रनिंग इनटू 96 पेजेस. दिस इज द syllabus as far as topics are concerned. I'll just read out the name of the topic and then we will talk in detail. First topic about basic concepts in economics. It's a very vast topic. You can see 17 pages, very interesting topic. All are interesting topics, how I will tell you. Then we'll talk about money. We are going to talk about partition value, that is about statistics. फिर महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, इंडिया के रूरल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे,
फिर इंडिया के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो जानेंगे। फिर कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो अभी आपको नहीं समझेगा, वो अभी मैं खाली इंडेक्स बोल रहा हूँ, और कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जानेंगे। तो ओवरऑल द सिलेबस इज वेरी वास्ट। As we know, because of corona pandemic, the situation is very bad. But let us hope that in 2-3 months, everything is going to definitely improve. It has started improving. We are going towards the positive side. And accordingly, colleges will be conducting your unit test or semesters or second unit test and final. Normally, there's 4 exams are held as far as colleges are concerned. जैसे 2-3 टॉपिक यूनिट टेस्ट में ले लिए, फिर 5 या 6 एक साथ में सेमेस्टर में ले लिया, फिर 2-3 ले लिए सेकेंड यूनिट टेस्ट में, और फिर फाइनल में लास्ट का सेम ले लिया। तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से कॉलेज का अपना अपना प्लानिंग होता है। एंड एज आई सेड, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंगल. So these are just the name. I have not explained you anything. These are the names of the topic. This is as far as the index goes. So you can see it's a very vast syllabus going up to approximately 100 pages about the economics subject. Okay, fine. Now, of course, I have the entire book ready. I can show you the book also, no problem about that. I've just shown you the index now. Let us say, for example, for the time being, let us say, for example, I'm opening topic number 2. This is our topic number 2. मैं topic 2 पहले के बारे में बात करना चाहूँगा. topic 1 में बहुत ज़्यादा बोलना होगा और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है. तो ये आपके सामने टॉपिक 2 यहाँ पर देख रहे हैं. देखिए, क्वालिटी ऑफ नोट्स देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया. ये हमारी क्लासेस का अपना खुद का नोट्स रहेगा जो पूरी टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट की एज सच कवर करेगी, इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स जो उसमें नहीं है. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश, एग्री डिसएग्री, देख रहे हैं, डिस्टिंग्विश, एग्री डिसएग्री, शॉर्ट नोट, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव्स विद आंसर्स एंड एवरीथिंग. तो ये आपको मैं बताऊंगा. अभी तो मैं तो खाली एक ऊपर से एक आइडिया दे रहा हूँ. जैसे ये आपके सामने यहाँ पर मैंने ये ओपन किया है. आई होप यू कैन सी दिस. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द हेडिंग रिटन इन दिस स्क्रीन शेयर जो अभी मैंने किया है? क्या हेडिंग लिखा है? टॉपिक का क्या नाम लिखा है? प्लीज आंसर. सुजल, कैन यू टेल मी? स्वयं, मनी, मनस्वी, यू आर राइट. दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. नाउ गाइस, ये बात तो हो गई कि आप कॉमर्स कर रहे हो, FYJC में आप अभी एडमिशन लोगे, आपको ये 2 इयर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ पास होना है, एंड उसके लिए करेक्ट गाइडेंस और कोचिंग आपको रिलायबल ऑब्वियसली देगा. ऐसे हर सब्जेक्ट्स की नोट्स है अपने पास में, नो डाउट अबाउट दैट. नाउ कमिंग टू माय सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पहले मैं उसकी बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. मैं पहले ये पूछ रहा था, जैसे एज आई सेड, दिस इज माय एग्जैक्टली 25th ईयर ऑफ टीचिंग. 25 साल नॉन स्टॉप 25 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो इतने साल में ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ बिग थिंग. मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं. एज आई सेड, मे बी योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स, फ्रेंड्स, बिल्डिंग वाले, अंकल्स, आंटीज, मे बी कि वो रिलायबल में पढ़े होंगे. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो इफ एनी ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर वाज एट रिलायबल और इज एट रिलायबल currently. Many students of ours have become chartered accountants and they are doing very well in their careers. Many have become company secretaries, many have become law graduates, some of them are even income tax officers. Because हम लोग तो मीरा रोड में रहते हैं तो हमें मिलते रहते हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स. तो can anybody tell me if any of your brother or sister was at reliable classes? You can write in the chat box. Okay, Swayam says my sister. Okay. And please tell the year also if you know, okay, 3 years back or 5 years back. Okay. Very good. Riddhi's brother was there. Swayam, sister. Deepthi, your brother. Okay, Manasvi, Mitali is your sister. Very good. So, you know that reliable is like a family, obviously, because the connection, the bond is such that generations and generations are coming. No problem with that. And many of your brothers sisters may have studied 3 years back, 2 years back, 5 years back, 10 years back. Okay, fine, very good. That's fine. Now, guys, as far as the subject is concerned, first I will take you to the subject, then we will talk about the remaining things. Just give me 1 second. Okay, let me talk something about the subject first.
You guys are now going for commerce stream, one of the best streams, no doubt. We also are from commerce, no doubt about that. With a lot and lot of options for your future studies. And I know after 10th, even some of you may be even thinking, कि यार commerce भी लेना है कि science लेना है. But obviously, based on our knowledge, our experience, commerce has the most number of options available for future studies. But मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर ही लिया होगा थोड़ा बहुत करियर का कि आगे क्या करेंगे. So I wanted some of you to answer what is your future plans. Now, of course, I believe that you are going to take commerce. What is your future plan? Like, कोई ने सोचा तो होगा यार मैं ये करूंगा वो करूंगा मैं ये करने वाली हूँ. Anybody, please give your answer on the chat box. What is your future plan? As far as academics is concerned, career is concerned, education is concerned. I'm waiting for your answer. Very good, Heath. Heath is writing that he is planning to become a CA. That's very good. Yes, Kushi, you can become an income tax valuation officer. You can even go for actuarist course. तो Heath is planning for CA. जैसे वो अपने साइंस में बोलते हैं ना भाई डॉक्टर इंजीनियर, वैसे कॉमर्स में अगर टॉप डिग्री में वन ऑफ द टॉप डिग्री है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सी है. फाइन. And we will be even conducting seminars, not now, afterwards, about the various careers options available in 12th standard. We will be talking about that. CA हो गया, CS हो गया, and other courses. Anybody else? Any plans for your future? खाली दो जन ने ही आंसर दिया. आपका कुछ तो प्लान होगा ना भाई, आगे मुझे ये करना है, क्या ये पढ़ना है. 11th 12th की तो बात परफेक्ट है, no doubt about that. Okay. Okay, someone is writing he wants to become a company secretary. Very good, Ashton. I'm very happy when you wrote both things. Yes, it is even quite possible to achieve both the degrees, CA and CS. जैसे CS and LLB, CA and LLB. That's very good. मुझे बहुत अच्छा लगा. Ashton has written that he plans to do CA and CS both. It is yes quite possible. Much of the syllabus is similar also, so you can go for double degrees also. आजकल डबल डिग्रीज की बहुत वैल्यू है, नो डाउट अबाउट दैट. तो दैट चलो बहुत अच्छी बात है. बट जैसे देखो प्लानिंग एकदम स्टार्ट से सही होना चाहिए. और अभी आप बहुत छोटे तो हो नहीं कि जूनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड या फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, तो अब समय आ गया कि हम अपनी आगे की प्लानिंग चालू कर दें स्टडीज की. एंड टेकिंग कॉमर्स इनटू कंसिडरेशन, द फर्स्ट स्टेप इज 11th एंड 12th. और उसके लिए आप अब हमारे साथ रिलायबल क्लास के साथ जुड़ोगे. ओके, चलो ये सब ठीक है. तो जील आपके भाई भी क्लासेस में थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, बिकॉज सर ने मेरा सुना हुआ याद आ रहा है 2 साल पहले आपके भाई 12th स्टैंडर्ड में थे, राइट? वेरी गुड जील, जील डावरा, एम आई राइट? यस, वेरी गुड. यस, बिकॉज आपका फेस भी आपके भाई के साथ मैच हुआ, अभी आपका वीडियो ऑन था. दैट्स वेरी नाइस. हाँ, तो भाई चलो आगे की बात करते हैं. This is the name of the subject I have written, which I am going to teach. So I am going to talk about my subject now, and other teachers will talk about their subjects, obviously. Guys, ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक फुल प्लेज थियरी सब्जेक्ट है, इस बारे में कोई शक नहीं. आपको पता है सब्जेक्ट्स ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, थियरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. अब थियरी सब्जेक्ट जैसे ही मैं बोलता हूं तो in the mind of the students, because of so many years of experience I know and teaching thousands and thousands of students, mind में students के कुछ बातें आना चालू हो जाती है. जैसे ही वर्ड थियरी आता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में जो बातें आती है मैं बताता हूं क्या आती है. थियरी सब्जेक्ट है मतलब बोरिंग है, पकाऊ है, नॉट स्कोरिंग है, जितने भी खराब वर्ड है सब बोल रहा हूं मैं, बकवास है, लर्न नहीं कर सकते, बाय हार्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं, घटिया है, सड़ेला है, एंड ऑल दैट. और सबसे बड़ी बात, ऑफ कोर्स नो डाउट इंग्लिश में तो होगा ही, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फॉलो द इंग्लिश लैंग्वेज. सो यू गेट दीज थिंग लाइक इट्स बोरिंग, इट्स पकाओ, इट्स नॉट स्कोरिंग, इट्स बकवास, कैन नॉट बी लर्न, कैन नॉट बी बाय हार्टेड, है ना, नॉट बाय हार्टेड, नॉट, घटिया है, सड़ेला है कि नहीं, थर्ड क्लास है.
These are the words that you hear when you talk about a particular theory subject. And especially about economics, I have heard this thousands of times. This is before teaching part I am telling. Teaching की तो अभी मैंने बात चालू ही नहीं की. ये वर्ड्स. और इसीलिए आज भी महाराष्ट्र बोर्ड में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग कोई फेल होते हैं कॉमर्स में तो वो इकोनॉमिक्स में होते हैं. आपको चाहिए तो डेटा चेक कर लेना. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में ये सारी बात घुस गई है, उनके दिमाग में ये सारी बात घुस गई है कि इको शी नींद आती है, बकवास है कि नहीं? नींद आती है, स्लीपी स्लीपी, नींद आना, थर्ड क्लास है, सड़ेला है, घटिया है, लर्न नहीं कर सकते, स्कोर नहीं कर सकते, बोरिंग है, पकाऊ है. These are the things that go into the mind of students when they hear about this subject. Why? Because it's a theory subject. But I can tell you one thing, or I can assure you one thing on the basis of my experience and so on. इनफैक्ट कई कॉलेज के टीचर्स तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे कॉलेज के भी और बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स भी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं. कई दूसरे बाहर जो कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स हमारे पास पढ़कर गए हैं, मे बी 5 years बैक, 10 years बैक एंड सो ऑन, क्योंकि हम लोग को वो कांटेक्ट करते रहते हैं. तो मैं ये कहता हूं कि देखो, मैंने इसके ऊपर क्रॉस मार दिया कि मैं तुम्हारे दिमाग से ये सब चीजें निकालूंगा और इसको पॉजिटिव एंगल से तुम्हें सिखाऊंगा. ये बोरिंग नहीं, हम इसको बनाएंगे इंटरेस्टिंग. कैसे? मैं बताऊंगा. पकाऊ से हम इसको इंटरेस्टिंग बताएंगे, स्कोरिंग तो बनाएंगे. 12th में इतने सालों से हमारा रिकॉर्ड रहा है, कोई एक साल ऐसा नहीं गया जहां इको में हमारे स्टूडेंट 12th में, 11th में भी और 12th में भी 95 के नीचे लाए हो. ये मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं. तो students of ours, many of them cross 90 and some of them even touch highest of the board, going up to 96, 97 tak bhi. So here we are not talking just about passing this subject, we are talking about scoring. And reliable आपने join किया है तो you have to excel and you will excel. It is not that what percentage you got in 10th, that's a secondary matter. The main thing is now you are starting a new career, एक नई शुरुआत है. तो डेफिनेटली आप देखोगे कि इस सबको हम उल्टा कर देंगे, स्कोरिंग बना देंगे, बकवास को इंटरेस्टिंग बना देंगे, पूरा लर्न करा देंगे, पूरा बायाट हो जाएगा और डेफिनेटली सड़ेला, सेकंड क्लास, नींद आना, ये सब आपके दिमाग से उड़ जाएगा. इट इज इवन पॉसिबल दैट इट मे बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट. दैट विल बी अ चैलेंज फॉर मी कि आपके दिमाग में अगर ये सब बैठा है या आपने यहाँ वहाँ सुना है या अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, तो ये मैं नेगेटिव कर दूंगा. ऑफ कोर्स those brothers sisters आपके जो मेरे पास पढ़ के गए हैं, they will even tell you what I told you just now. You can ask your brother or sister how they had studied in reliable classes if they were in reliable classes, and I bet they will tell you that they even remember the answer. झील दीदी को पूछो कि उनको अभी भी आंसर याद है कि नहीं और वो हाँ कहेगी. मानसवी दीदी को पूछो क्या उनको याद है कि नहीं और वो हाँ कहेगी. That way you are going to do economics. And let me tell you, it is not just a matter of 11th and 12th, because whatever future studies you go, economics साथ में चलेगा, economics पीछे नहीं रहेगा. OCSP बंद हो जाएंगे, हिंदी बंद हो जाएगा, इंग्लिश बंद हो जाएगा, लेकिन इको चलेगा. आप बीकॉम करो तो भी इको है, बैफ करो तो भी इको है, सीए करो तो भी इको है, सीएस करो तो भी इको है. तो इको तो आगे आपकी स्टडीज में काम आना ही है. तो इसलिए सब्जेक्ट का बेस भी परफेक्ट होना चाहिए. तो मैंने कहा आपके दिमाग में अगर ये सब है या कोई डाल रहा है या आपने सुना है, तो ये सब चीजों को हम नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये सब मैंने नेगेटिव बात लिखी है, पकाऊ है, बोरिंग है, ये सब नेगेटिव है. अगर ये सब नेगेटिव है तो वी विल कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव्स. हाउ? बाय वे ऑफ टीचिंग. हाउ? आई विल टेल यू what is the plan of study, how we are going to learn, what is the plan of teaching. Plan of teaching economics. देखो भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्पेशली थियरी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बढ़िया और बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल. आप कोई चीज सीखने जा रहे हो तो वो सीखने की जो
मटेरियल है जहां से आप सीखोगे वो तो सही होना चाहिए, वो तो सही क्या बेस्ट होना चाहिए। तो आपको मैंने अभी भी दिखाया कि अपनी क्लासेस की जो नोट्स है, अपडेटेड, रिवाइज्ड, 100% परफेक्ट, बेस्ड ऑन द महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस ऑब्वियसली, इज द बेस्ट। चाहे आप बॉम्बे की कोई भी कॉलेज से हो, we have all the students coming from all the colleges, nothing like that, चाहे एनएम हो, चाहे मिठीबाई हो, चाहे रॉयल हो, ठाकुर हो, कोई भी कॉलेज हो, हम लोग कॉलेज में कभी डिफरेंशिएट करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो आपको मिलेगा रिलायबल क्लासेस की तरफ से द बेस्ट स्टडी मटेरियल, no doubt about that. Reliable classes will also provide you with government textbooks, and they will also provide you with the study material that we are going to do in the classes. नंबर 2, स्टडी मटेरियल के ब्रैकेट में लिख देता हूं अपना क्लासेस का नोट्स, और साथ में आपको कॉलेज के लिए अलग से दी जाएगी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्योंकि कॉलेज में आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लेके ही जाना पड़ेगा कॉलेज के रूल के हिसाब से वगैरह। हम जो करने वाले हैं, हम साथ में इको के थियरी सब्जेक्ट है तो भी हम बनाएंगे, वी विल मेक अ नोटबुक जिसमें हम नोट्स लिखेंगे, टू राइट नोट्स। क्या कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम एक नोटबुक बनाएंगे, एक नोटबुक चाहिए, नोटबुक्स नहीं, एक नोटबुक हमें 200 पेज की लॉन्ग बुक लगेगी। कब क्या जब पढ़ाई चालू होगी तब मैं बताऊंगा। वी विल बी हैविंग रेगुलर टेस्ट्स टॉपिक वाइज, पेपर्स विल बी सेट बाय मी, and we will be conducting test of topic wise study, including semester test also as per the requirements. So regular test, no doubt about that. That is the planning as far as teaching is concerned. Study material, notebook, regular test. Obviously बाकी attendance policy classes की जो होती है वो है marks sending to parents, वो सब तो मालूम होगा आपको, ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। अदर देन दैट हाउ टीचिंग विल बी डन, ये तो रिक्वायरमेंट है कि हमें ये 3 चाहिए। आपको ऑब्वियसली रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना है, एब्सेंटिज्म नहीं। आपको साथ में नोटबुक मेरे साथ मेंटेन करना है, जो मैं बताऊंगा कैसे। टेस्ट विल बी कंडक्टेड, हाउ एंड व्हेन, दैट विल बी आल्सो इन्फॉर्म। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले मैं ये बोलना चाहूंगा इकोनॉमिक्स है क्या। अभी तक हमने सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं की कि क्या है ये सब्जेक्ट, इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। तो सुनो, प्लान ऑफ स्टडी तो हो गया कि हमारे पास हमारा बेस्ट स्टडी मटेरियल है, साथ में हम एक नोटबुक बनाएंगे, टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम कंडक्ट होंगे, दैट इज ऑल फाइन। बट हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी इट, तो सुने उससे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, ये बात तो ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक साइंस है। क्या आपने कभी सुना है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस। एनीवन हैज हर्ड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस? अच्छा चलो, नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा साइंस क्या होता है। आपने स्कूल में तो साइंस पढ़ा ही है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। साइंस को कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। देखो भाई, साइंस जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब नेचुरल साइंस है। मैं नेचुरल साइंस के डीप में अभी नहीं जा रहा हूं। और इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। मैं सोशल साइंस के बारे में अभी आपको जरूर बताऊंगा। याद रहे, मैं अभी एक डेमो लेक्चर ले रहा हूं जहां कुछ बातें मैं करूंगा आपके साथ। सोशल साइंस, anybody can tell me what is the meaning of social science? Any idea? आपने अपनी लाइफ में स्कूल में कभी सुना हो सोशल साइंस? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। I want answers from you people. Anybody, you can give a try. Wrong होगा तो भी चलेगा। सोशल साइंस, नो आइडियाज? ट्राई करने में क्या बुराई है? सोशल साइंस उसे कहते हैं वो साइंसेस which deals with human behavior. Social science is equal to which deals with human behavior. इंसान क्या सोचता है, ये एक पूरी स्ट्रीम ऑफ साइंस है जिसे सोशल साइंस कहते हैं। कभी आपने सुना है? नहीं तो आज सुन लो, कोई बात नहीं। हमारा इंसान का, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है।
भगवान ने, गॉड ने हमें ऐसा बनाया है कि बात ही अलग है इंसान की। तो हमारे दिमाग में हजारों लाखों चीजें चलती रहती है। हमारा बिहेवियर, ऑफ कोर्स दिमाग से हम डिसीजन लेते हैं, तो हमारे बिहेवियर को जो स्टडी करता है उस साइंस को बोलते हैं सोशल साइंस। क्या आपको पता है हम सब एनिमल है, मैं भी एनिमल हूं, आप भी एनिमल है, वी सब आर एनिमल। कैन यू टेल मी हम लोग एनिमल कैसे हुए? एनीबडी कैन आंसर माय क्वेश्चन? वी ऑल आर एनिमल्स, प्रूव दैट वी ऑल आर एनिमल्स। एनी आइडिया? Do you know we all are social animals? Yes. And the behavior that we do is called or is the human behavior. मैं ह्यूमन बिहेवियर की एक दो आपको पहले एग्जांपल देना चाहता हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ अर्थक्वेक। माइनर लेते हैं, मेजर हुआ तो सबके सब मर जाएंगे या बहुत लोग मर जाएंगे। माइनर, लगभग 5 ऑन द रिचर स्केल, तो अभी अच्छा खासा झटका आता है। What will you do if you face a earthquake? What will be your reaction? आप घर में बैठे हो, मान लो अभी का अभी earthquake आता है, what will be your reaction? अगर आता है तो अभी भागना मत। Please tell me what is your reaction? You are going to, what you are going to do? Hello? If there is a earthquake, what is your reaction? What are you going to do? Definitely zeal, you are going to run. That is human behavior. You are going to बचाओ बचाओ या बचो और क्या जो भी है भागोगे। Human behavior. There is a loud sound on the road. You are walking on the road. What will do? You look there. क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई क्या हुआ? इतनी आवाज को टायर बस्ट हुआ, क्या हुआ, क्या 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 लफड़ा, क्या क्या हुआ? Human behavior. Human behavior के 10 करोड़ एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड नहीं है कोई। You go to some party or wedding and कोई अच्छा खाना है तो आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा, अरे यार क्या खाना है, मजा आ रही है यार। कभी कभी कुछ गलत हो गया, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर ऐसी चीज है ना भाई, जिसको जितना बोलो उतना कम है। सोशल साइंस वो होती है जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, और ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे एग्जांपल है। एग्जांपल क्या, साइंस है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब ह्यूमन बिहेवियर के एग्जांपल है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसा कहा जाता है सोशल साइंस में कि इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं अभी तक जो आपसे बात की उसका आपको मुझे आंसर देना है। एक इज ट्रू और फॉल्स बोलो। चलो, ट्रू होगा तो टी लिखना, फॉल्स होगा तो एफ लिखना। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। खाली 2 जन 3 जन मत जवाब दो, बाकी लोग भी तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वेरी गुड। इकोनॉमिक्स इज अ नेचुरल साइंस। आई चैलेंज यू। ट्रू के फॉल्स? आपने लेक्चर बराबर सुना नहीं शायद। इकोनॉमिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फॉल्स, इट इज अ सोशल साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब नेचुरल साइंस है, और उसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं। इट्स अ सोशल साइंस। सोशल साइंस आर दोज विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सोच के जवाब देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस। कम ऑन। फिजिक्स, केमिस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस। रिद्धि, आंसर इज फॉल्स, दे आर नेचुरल साइंस। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स आर एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस। ट्रू, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स इज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। ट्रू, वेरी गुड। तो मैंने आपको एक हल्का आइडिया दिया कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, इसलिए इसको सोशल साइंस कहते हैं, और ये क्वीन ऑफ सोशल साइंस माना जाता है। ओके फाइन, थैंक यू। अब आगे क्या? तो इकोनॉमिक्स भाई इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि आप खाली इकोनॉमिक्स में भी स्पेशलाइज कर सकते हो। एक पूरा, जैसे अकाउंटेंसी एक पूरी लाइन है, वैसे जैसे बायोलॉजी पूरी एक लाइन है, जैसे केमिस्ट्री एक पूरी लाइन है, जैसे मैथ्स एक पूरी लाइन है, वैसे इकोनॉमिक्स एक पूरी लाइन है। You can even go up to PhD in economics. आपको मालूम है अपने पास्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, he is PhD in economics, no doubt. सुना होगा आपने।
You can even go for that. अभी तो मैं 11th 12th की ही बात कर रहा हूँ, but yes, you can go for PhD in economics, no doubt about that. इतना बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. अब सवाल ये उठता है कि बेसिक्स तो मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, बहुत अच्छी बात है. ओके, थैंक यू. अब आगे क्या है? Now, as far as FYGC is concerned, as I told you, we have 10 topics in our syllabus total. Fine. I told you we will be having the best notes जो ready है, printing में जा चुकी है. We will be maintaining a notebook also, point wise. We will be conducting test. We will be doing topics. How the hell are we going to do the topics? Now that point comes. So guys, now I will tell you how actually we are going to do the topics. Just give me 1 second. भाई बात ये है कि हमारे पास 10 टॉपिक्स ऑलरेडी बुक में है. फाइन, लेट्स जस्ट लेट मी डू द न्यू स्क्रीन शेयर. हाँ, यही चल रहा है. ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच. तो आपको मैं यहां दिखाता हूं. यहां पर एक टॉपिक है मेरे पास, ये नोट्स है. मैंने कहा मैं आपको इको पढ़ाने वाला हूं. नाउ आई एम नॉट दैट अ टीचर जो रीड करे और खत्म करे. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टेट द प्रॉब्लम, ब्ला 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 ब्ला. ये हो गया. चलो अभी नेक्स्ट आंसर रीड करेंगे. ब्ला 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 ब्ला. ओके, थैंक यू. दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज चीटिंग. How the teaching will be done in economics? Let me clarify to you. What I will do is, let us suppose I'm starting this topic. Let us say, जैसे मैंने कहा money. We will conceptually understand the concepts. Concepts को जानेंगे, समझेंगे. साइंस है ना ये. साइंस में अपने अपने एक क्या अनेक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना पड़ता है. याद रहे, आप इको को बहुत लाइटली नहीं ले सकते. बहुत लोग इसे बहुत लाइट लेते हैं और फिर फेल तक हो जाते हैं. वो क्या सोचते हैं, कॉमर्स ज्वाइन किया तो हम खाली बीके मैथ्स कर लेंगे, हो गया हमारा काम. सॉरी गाइस, you need to have coaching of all subjects. Or eco is not an easy subject, I have told you. How we will make it easy, I will tell you that also, don't worry. अब आप रिलायबल का पार्ट बनोगे तो आपको सब पता चलेगा. तो एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, एग्जांपल्स देंगे, रीडिंग भी करेंगे. और सबसे बड़ी एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो मेरे पास है, ये 25th ईयर है मेरा टीचिंग का, जिससे आप आंसर्स पूरा याद रख सकोगे. और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां लिख के बताता हूं. मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको मैं पूरे पूरे आंसर याद करा दूंगा और आपको याद रहेंगे. वो है mnemonics. Whenever I take my first demo lecture, बात ये होती है कि जब मैं ये बात करता हूं तो 100 में से 90 लोग को पता ही नहीं होता मैं क्या बात कर रहा हूं. Do you any of you have any idea about what I have written here? किसी को कोई आइडिया है? या आप चाहो तो अपने मोबाइल पे गूगल पे सर्च करो, क्या है ये mnemonics. आई एम वेरी 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 सैड टू नो, मैं स्कूल लेवल पर जो है ये बताना चाहता हूं कि ये ट्रिक यूज ही नहीं की जाती या बहुत कम यूज की जाती है. mnemonics, nobody has any idea. आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कुछ आइडिया इसके बारे में? आई एम वेरी सैड टू नो कि many teachers in schools do not use this technique. Or in fact they don't know how to use this technique. Any idea? Nobody? Mnemonics is a code word technique by which you can remember the answers word to word. पूरा word to word मतलब पूरे सेंटेंस के सब. Yes, Heath, you are right. mnemonics से आप पूरे आंसर्स याद कर सकते हो. पहली चीज समझना, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट उसके बाद होता है रिप्रोड्यूस करना. रिप्रोड्यूस मतलब एग्जाम में लिखना. और वो टाइम पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, कारण ब्लैंक हो गया, याद नहीं है, पॉइंट भूल गया. 6 पॉइंट है, 2 याद है, 4 में भूल गया, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिख दिया. ये थियोरी में बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं सबसे. Based on my so many years of experience and checking thousands and thousands of papers, I know that this is the mistake done by students.
Here we will be having that technique, वो लगभग जो कोई टीचर्स यूज नहीं करते हैं, आई एम वेरी सैड टू से कि नहीं यूज करते हैं, वो है मिनिमोनिक्स। ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, ये ब्रेन टेक्निक है जिससे आप कोई भी आंसर्स याद कर सकते हैं, और एक आंसर नहीं, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो। तुम बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूं। 12th का हमारा कोई भी स्टूडेंट, अगर आपका फ्रेंड या कजन या ब्रदर सिस्टर है, उसको आप पूछ लो, बिकॉज एज आई सेड मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। मोर देन 100 आंसर्स वी हैव ऑन द टिप ऑफ द टंग, because we do it with code words. I make my own code words. I have my own code words, जिससे मैं आपको ये पूरा याद दिला दूंगा, और उसका भी मैं आपको डेमो दूंगा। कोड वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो थोड़े स्टूपिड, थोड़े अलग, थोड़े हटके हो। यू कैन यूज जैसे कोई हिंदी डायलॉग, और यू कैन यूज इंग्लिश में कुछ, जैसे आई लाइक एवरी पर्सन विथ कूल इमेज, मेरा एक कोड वर्ड है। हर एक वर्ड के आगे आंसर का एक पॉइंट जुड़ता है, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, वर्ड हो, खाने की कोई चीज हो, घूमने की कोई चीज हो, प्लेस हो, कुछ भी। जैसे अभी हम 12th स्टैंड तो नहीं कर रहे, 12th ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, एक टॉपिक मेरा होने आया है, हो गया, आज शाम को खत्म हो जाएगा वो टॉपिक। जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ, एक टॉपिक है मेरा 12th में, अब मैं 12th की बुक भी यहाँ से ओपन करके दिखा सकता हूँ, आपको चाहिए तो दिखाऊं। एक टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ मार्केट 12th स्टैंड में, और उस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन। आई नो आपको मालूम भी नहीं होगा ये, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इकोनॉमिक साइंस है, और यहां हजारों नए वर्ड्स हम सीखेंगे। जैसे हमारा साल आगे जाएगा, वी आर गोइंग टू सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, और मेनी मेनी थाउजेंड्स तो नहीं, मेनी मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स, और इसीलिए इको ज्वाइन करना बहुत जरूरी भी है। चलो मैं 11th की बात करता हूँ ना, 12th का मैं तो कोई रैंडमली एग्जांपल देता हूँ। आंसर है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसमें करीब 10-11 पॉइंट्स है। मुझे सारी बुक्स बाय हार्ट रहती है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, नथिंग ग्रेट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, होमोजेनस कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रैशनैलिटी एंड सिंगल प्राइस। 10 पॉइंट है। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं कि कोड वर्ड की टेक्निक कैसे होती है। देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, चलो 9 पॉइंट्स पकड़ लो। ये मैंने यहां पर कुछ लिखा है। जब मैं आंसर पढ़ाता हूं 12th स्टैंडर्ड का, बाद में 11th का भी बताऊंगा मैं, तब मैं उनको ये पूरा सिखाता हूं। ये पूरा जो आंसर है 1 घंटा ले लेता है पूरा सीखने के लिए। 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 10 पॉइंट है इसमें। L L H, ये देखो, large number of seller, large number of buyer, homogeneous commodity, freedom of entry and exit, single price, perfect knowledge, perfect mobility of factor, no government intervention, absence of transport, rationality। मुझे कैसे याद है ये कोड वर्ड? लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या राय। ये मेमोरी ट्रिक मेरे दिमाग में मैंने कोड वर्ड डाला है, कोड वर्ड से मैं लिंक करता हूं। वो कैसे लिंक करते हैं उसकी मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। वो ट्रेनिंग के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है, ट्रेनिंग है वो, कैसे कोड को याद करने का दिमाग में। लाल तो मेरे दिमाग में लाल, एल लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लाल एल लार्ज नंबर ऑफ बायर, होट एच होमोजेनस कमोडिटी, फटे एफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सारे एस सिंगल प्राइस। ऐसे मैं दिमाग में सेव कर लेता हूं, और ये प्रूवन ब्रेन टेक्निक है। तो मत बोला ये आपको आती, हम लोग कैसे आएगी? हर इंसान ये सीख सकता है। और आपको अगर इस पे कोई शक है, अगर अभी तक आपने ऐसी टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, तो आई एम वेरी सैड। तो आप ब्रेन गेम्स करके जानते हो, नेशनल ज्योग्राफिक पे आता था, यूट्यूब पे है, वहां भी आप इसके बारे में सुन सकते हो। एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं मिनेमोनिक्स। इससे आप बड़े से बड़े आंसर्स याद कर सकते हो, कोई भी। और मैं क्यों आपको 12th की बात कर रहा हूं, आपके लिए मैं 11th का डेमो लाता हूं ना। ये देखो आपके सामने, यहां पर है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं अभी के लिए 2 मिनट के लिए आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बोलता हूं। लेट अस से वी विल बी स्टार्टिंग विद टॉपिक मनी। पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, ये गाना सुना होगा।
मनी, आज इकोनॉमी मनी के बगैर इमेजिन नहीं हो सकती, चाहे वो चेक हो, ड्राफ्ट हो, कैश हो, कॉइन्स हो, बिटकॉइन्स हो, क्या बोलते हैं यार, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो, आज पैसा ही सब कुछ है भाई। इकोनॉमी को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, वो बोल रहा हूं मैं। अब आप जनता हो, हम सब जनता है, हम कैसा चाहते हैं, मनी कैसा हो। हम डायरेक्ट इसी से शुरू करते हैं। मेरे को हाँ या ना बताना, क्या आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जो नोट प्रिंट करे वो इतने डेलिकेट हो कि फट से फट जाए, उनका कलर निकल जाए, फट के 2 टुकड़े 4 टुकड़े हो जाए? डू यू वांट दैट? डू यू वांट ड्यूरेबल मनी और नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल समझते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग। अभी 2000 का नोट मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उसका कलर उतर जाता है, बारिश में भीग गया तो कलर उतर गया, कलर उतर गया, गया पैसा, फिर वो कागज बन जाएगा। क्या आप चाहते हो कि नोट ड्यूरेबल हो कि ना हो? ड्यूरेबल। अगर गवर्नमेंट सिर्फ 2000 का नोट प्रिंट करेगी और कोई नोट प्रिंट नहीं करेगी, चलेगा आपको? छुट्टे का कितना प्रॉब्लम आता है? क्या हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करे? हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पैसा ड्यूरेबल हो, हम चाहते हैं कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में हो, डिविजिबल। हम जनता क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। एक मनी को गुड मनी कब कहा जाएगा? जब उसमें क्वालिटीज होगी, और वो क्वालिटीज मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर आपके सामने 7 पॉइंट्स है, मैं 7 पॉइंट्स भी बताऊंगा और आपको कोड वर्ड भी बताऊंगा इसको पूरा याद रखने का। बट ऑलवेज फर्स्ट आई एक्सप्लेन द आंसर, देन आई टेल द कोड वर्ड। I did not say that code word explains the answer. I said code word helps you to remember the answer, which obviously is a very important step also. But first we have to understand the answer. That I will do first in the lecture. After explaining you the answer, then the second part, which many teachers fail to do, is how to remember that answer for years and years to come. Yes, I am telling years and years. वो स्टूडेंट को याद कैसे रहे, और उसके लिए कोड वर्ड्स यहां पर हम बाजी मार के ले जाएंगे। कोड वर्ड्स, जैसे जब मैं आपको यह आंसर कराऊंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कोड वर्ड है डाल डाल पे, जिराफ चींटी हाथी शेर। बड़ा अजीब है, और कोड वर्ड अजीब ही होना चाहिए। अजीब होगा तो ही याद रहेगा। कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी मिक्स, कभी प्लेसेस, कभी कोई डायलॉग, कभी कोई सॉन्ग, कभी ये कभी वो, थोड़ा अजीब होना चाहिए। डाल डाल पे, डाल डाल पे, जिराफ चींटी हाथी शेर। इससे आपको पूरा आंसर याद रहेगा। पहले समझेंगे बाद में, पहले समझना पड़ेगा। जैसे अभी अभी मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, मैं अभी करंटली खाली क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन 1 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आंसर है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जब मैं क्वेश्चन 1 कराऊंगा तो आपको मैं बार्टर सिस्टम और उसकी डिफिकल्टी की बात कराऊंगा। लाल लाल दुपट्टा फटा फटा, उसमें 5 पॉइंट्स है, पूरे कोडवर्ड के साथ आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम कम है, क्योंकि 11 o'clock के आसपास मैं टॉपिक लेक्चर वाइंड अप करूंगा। अभी मैं आपको क्वालिटीज ऑफ मनी की बात कर रहा हूं। हम जो मनी टॉपिक की अभी कुछ बात करेंगे, हम जनता है, हमें पता है कि मनी इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट है। मनी के बगैर आज दुनिया चल नहीं सकती। ओके फाइन। एज जनता वी वांट के मनी में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, और वही ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, ऐसा भी कहा जाता है। वो क्वालिटीज है तो मैं मनी को गुड मनी बोलूंगा, या मैं उसकी सराहना करूंगा। आई विल से दैट या इट्स गुड, बट इफ इट डज नॉट पोजेस दैट क्वालिटी, देन आई एम वेरी सॉरी, देन आई विल बी दुखी, यू कैन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, अगर 2000 के कलर का नोट निकलता है, अगर 2000 का नोट जल्दी फट जाता है, तो यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी? जस्ट टेल मी, हैप्पी और अनहैप्पी? अगर आपके पास 2000 का नोट है और आप देख रहे हो बारिश में भीगे और कलर उतर गया, तो यू विल बी अनहैप्पी। अगर गवर्नमेंट सिर्फ 2000 का नोट प्रिंट कर रही है, यू विल बी अनहैप्पी। अगर आप देख रहे हो कि ये 2000 का नोट मुंबई गुजरात में चलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अगर नहीं चलता है, आसाम में अगर नहीं चलता है, अगर ऐसा हो, जबकि ऐसा नहीं है,
तो यू विल बी अनहैप्पी। जब हमारा इंडिया पूरा एक है तो पूरे इंडिया में नोट चलना चाहिए, कश्मीर में चलना चाहिए, कन्याकुमारी में चलना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा उसका? तो यू विल बी अनहैप्पी। बट आई डोंट वांट टू मेक यू अनहैप्पी। वी विल टॉक फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ मनी। और वही यहां पर आंसर है। कोडवर्ड आपको मैंने कहा, डाल डाल पे जिराफ, चींटी, हाथी, शेर। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। लेट्स हैव अ लुक। एनी कमोडिटी कैन नॉट एक्ट एज मनी। हर चीज मनी नहीं है। ये मनी है, ठीक है, मैं इसको बेच के मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये दूसरी बात है। ये फोन 5,000 में बिक सकता है, लेकिन अभी ये क्या हार्ड कैश है? ये क्या कॉइन है? नहीं। अ थिंग विच वर्क एज मनी मस्ट पोजेस सम क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो अब हम जानना चाहते हैं। एक सिंपल आंसर से मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे डाल डाल पे जिराफ, चींटी, हाथी, शेर, कोडवर्ड मैंने बोला। डाल डिविजिबल। खाली 2,000 का नोट प्रिंट करेगी गवर्नमेंट तो मर जाएंगे यार, छुट्टा कहां से लाएंगे? हमें मालूम है कि गुड मनी उसे कहेंगे जो अलग अलग डिनोमिनेशन में डिविजिबल। मैं चाहता हूं 2,000 से लेके 1 रुपए तक आप उल्टा नीचे आओ, मुझे बताओ क्या क्या डिनोमिनेशन है। 2,000 का है, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, है ना? 1, 2 का तो अभी दिखने को नहीं मिलता है, जो भी है। तो इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं। इससे एक्सचेंज इजी होता है, ट्रांजैक्शन बराबर आसानी से हो पाएंगे। नहीं क्या कई बार आपको मालूम है छुट्टे का कितना प्रॉब्लम हो जाता है? तो हम जनता क्या चाहते हैं कि मनी कैसा हो? डिविजिबल हो। जोर से बोलो, कैसा हो? डिविजिबल हो। हम चाहते हैं दूसरा पॉइंट, ड्यूरेबल हो। इधर इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपने इंडिया में। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग पीरियड तक चले। हाँ, कॉइन्स तो लॉन्ग पीरियड तक चलते, देखो नोट कॉइन सब मनी है, पहले ही बोल रहा हूं। लेकिन बाकी आपको मालूम है अपने वहां नोट पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो कितना प्रॉब्लम आता है। फिर हम चाहते हैं किसको भी चिपका दे, पकड़ा देगा, लेकिन वो अपने को पकड़ लेता, भाई साहब आपका नोट फटा हुआ, सॉरी यार, क्या करें। लेकिन आपको पता है सिंगापुर वगैरह में और जापान वगैरह में भी प्लास्टिक के भी नोट होते हैं भाई साहब, और वो फटते भी नहीं है, नॉन टेरेबल। अभी इंडिया को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि वो ड्यूरेबल हो। हम चाहते हैं पोर्टेबल हो। डाल डाल पे, डाल हो गया, डाल हो गया पे, पोर्टेबल समझते हैं, इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जांपल सुनना। सोचो आप, गवर्नमेंट अगर सिर्फ 10 रुपए का नोट प्रिंट करती है, लेट अस से, एग्जांपल है, लेट अस से आई एम बाइंग फ्लैट एट अंधेरी फॉर 1 CR। आई हैव टू मेक पेमेंट टू द पार्टी 1 CR, एग्जांपल। तो भाई 10 रुपए के नोट से, समझो चेक वेक नहीं है, नोट की बात कर रहा हूं, मैं अगर पेमेंट करने अंधेरी जाऊंगा तो मेरे को तो लगता है ट्रक भर के लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। दूसरा एग्जांपल, मेटल्स। मेटल्स भी कितने हैवी होते हैं। अगर मैं कॉइन्स में पेमेंट करूं, इमेजिन करो आप, मर जाएंगे। लेकिन आप बोलो अगर 2,000 के नोट से पेमेंट करते हैं, एग्जांपल है ये, रियल में ऐसा पूरा ब्लैक मनी नहीं होता है, तो फिर आसान होगा कि मुश्किल? आपको पता है 1 लाख रुपए एक जेब के कोने में रखो, मालूम भी नहीं पड़ता। 2,000 के नोट जब से आ गए, तो नोट ऐसे होना चाहिए या मनी ऐसा होना चाहिए जो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल समझते हैं, इजी टू बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पोर्टेबल। तो डी फॉर डिविजिबल, डी फॉर ड्यूरेबल, डाल डाल पे पोर्टेबल। जिराफ, जनरली एक्सेप्टेबल, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई गो टू आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह, देर आई हैव मोमोज, वहां के बहुत फेमस होते हैं मोमोज। आई गिव हिम 100 रुपए का नोट, कितना हुआ? ही सेज 50 रुपीज, ओके ये लो। विली से नहीं नहीं, यहाँ चाइना का पैसा चलता है। नो, वी ऑल आर इंडियंस, ही इज ऑल्सो इंडियन। चाइना थोड़ी है, चाइना अलग देश है, हमें चाइना से क्या मतलब? ये मेरा इंडिया है, यहाँ चलेगा चलेगा। कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, हर जगह चलना चाहिए, तो ही वो गुड क्वालिटी का माना जाएगा। और ऑफ कोर्स है, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं इंडियन। मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल विदाउट एनी प्रॉब्लम एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। पोर्टेबल में बोल दिया, कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट डिफिकल्टी। कॉग्निजेबल का मतलब आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंग्विशेबल। नोट में भी मैं बात कर रहा हूं, अगर 10 का नोट, 20 का नोट एक ही कलर, एक ही साइज के होंगे, तो भाई अपने इंडिया में कितने इलिटरेट लोग हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे सच बोलूं, अपने लोग को भी 1 रुपया और 2 रुपए के कॉइन में बहुत कंफ्यूज होता है। कई बार रिक्शा वाले ऐसे उल्लू बनाते ना,
एक के दो के कॉइन के बदले एक का कॉइन आपको अपने को देते हैं, अपन बाद में देखते हैं अरे यार ये तो एक का है दो का नहीं। आपको मालूम, और वो लोग कभी भी लेते हैं ना, देखो वो लोग पलट के चेक करते हैं, कॉइन का पीछे के साइड से पता नहीं चलता एक का है कि दो का है, लगभग वही साइज का है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, और गवर्नमेंट कर भी रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के, साइज के नोट्स एंड कॉइन्स होना चाहिए, ताकि वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो कि भाई ये 50 का है, ये 500 का है, ये 2000 का है, तो कॉग्निजेबल होना चाहिए। अच्छा, होमोजिनिटी, जो एक पर्टिकुलर टाइप का है वो वैसे ही होना चाहिए। अभी 20 रुपए के नोट में 50 कलर निकालेंगे तो पागल हो जाएंगे ना। होमोजिनिटी मतलब सिमिलरिटी, पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का है तो वो सेम होना चाहिए। 2000 का नोट अगर 5 कलर का होगा पागल हो जाएंगे। आपको पता है पुराना वाला 500 नोट 2-3 कलर में आता था, बहुत कंफ्यूजन था, और फिर नकली वकली का भी कितना झंझट था। तो होमोजिनिटी मींस ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी। एंड स्टेबिलिटी का मतलब इट शुड हैव अ स्टेबल वैल्यू। अब मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, जैसे इन्फ्लेशन। डू यू हैव एनी आइडिया इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है अपनी क्लास में इन्फ्लेशन? कोई तो बोलो यार। महंगाई का बढ़ना। अगर महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। पैसे की औकात ही नहीं होती। अभी देख लो ना, पेट्रोल में देखो क्या हालत हो रही है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू हम जनता चाहते हैं कि स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना होने, तो गरीब मर जाएंगे यार। तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब उसमें बहुत चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दी अबाउट, जितना हमारे सिलेबस में उतना ही बोलूंगा, वरना मैं इन्फ्लेशन पे आधा घंटा बोल सकता हूं। लेकिन हमें अपने सिलेबस से रहना है। क्या है क्वालिटीज ऑफ गुड मनी? जल्दी बताओ, कोडवर्ड क्या रहेगा? डाल डाल पे, जिराफ चींटी हाथी शेर। डाल डाल पे, giraffe, cheetah, hathi, शेर. Come on, now you will link in your brains. Dal, divisible. Dal, durable. Pe, portable. Dal dal पे जिराफ, जिराफ जनरल एक्सेप्टेबल. चीटी कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल मतलब आइडेंटिफाई. हाथी, जिराफ भूल गया मैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. हाथी होमोजेनिटी, और शेर स्टेबिलिटी. ये तरीके से आपको मैं पूरे आंसर्स याद कराऊंगा. ये तो एक आंसर का मैं एक डेमो दे रहा हूं भाई. बाकी ऑफ कोर्स बाकी बातें जरूरी थी, इकोनॉमिक्स क्या है एंड ऑल दैट, वो सब बातें भी हमारी हो गई. तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट है. बस 2-3 मिनट और लूंगा, फिर हम लोग रुक जाएंगे. राइट. मैं कहता हूं नोट्स ऐसे होना चाहिए जो जल्दी फटना नहीं चाहिए, उनका कलर नहीं जाना चाहिए, फटना नहीं चाहिए. कौन सा पॉइंट होगा वो? कैन यू टेल मी विच पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट? कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर. जल्दी बोलो. ड्यूरेबल. वेरी गुड सुजल. इट शुड बी ड्यूरेबल. आई एम वेरी प्राउड, यू हैव गिवन राइट आंसर. अच्छा भाई, महंगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए. इट शुड हैव, अभी मैं बोल दूंगा तो वर्ड आ जाएगा, इसलिए मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं. इट शुड बी डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी? स्टेबल. स्टेबिलिटी. वेरी गुड प्राची. स्टेबिलिटी, यू आर राइट. ओके. एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाने में आसानी होनी चाहिए. आसानी होनी चाहिए. कम ऑन गाइस. पोर्टेबल. एक टफ पॉइंट दे रहा हूं आपको. अगर 20 का नोट है तो सारे 20 के नोट एक जैसे होने चाहिए. अगर 20 रुपीज नोट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन इट शुड बी ऑफ द सेम साइज, सेम कलर, सेम डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन सेम ही है, मतलब सेम साइज एंड सेम कलर, यू कैन से. होमोजेनिटी. होमोजेनिटी, वेरी गुड. होमोजेनिटी मतलब सिमिलर. ओके, वेरी गुड. अभी कई लोग, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर होमोजेनिटी और डिविजिबिलिटी दोनों कैसे हो सकता है सर? भाई एक पर्टिकुलर नोट की बात किया तो होमोजेनिटी, लेकिन सबकी बात करूं तो सब अलग अलग होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी. बराबर ना भाई? एम आई राइट? वेरी गुड. सो गाइस, दैट्स वेरी नाइस. तो आई हैव गिवन यू आइडिया
about how the things will be done जब हम लोग क्लास में मिलेंगे. As far as now currently online is concerned, बाद में offline जो हम अच्छी तरह जानते हैं. So this is one answer that I just give you a demo about the subject and so on. तो ये बातें अभी हमने की. फाइन. और बहुत सारी बातें जैसे हम मिलेंगे और बातें करेंगे या अगर और आगे लेक्चर हुआ तो और बातें करेंगे. So I think you have got an idea about this now. And this is the way we are going to do economics, not one answer but whole topics and धीरे धीरे पूरी पूरी बुक्स. आपको बुक का एक मैं आइडिया दे रहा हूँ. ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. ये खुद रिलायबल क्लासेस की बनाई हुई बुक है. आई हैव मेड दिस बुक कंप्लीटली. You have all the answers here. Question answer form, distinguish आपको दिख रहे हैं, agree disagree. You can just have a look here. And all objectives along with answers. Everything, each one of this thing will be done in the class. ये सब हम क्लास में सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पॉइंट वाइज नोटबुक बनाएंगे एंड सो ऑन. एंड आंसर्स के कोडवर्ड्स होंगे, नोटबुक हम पॉइंट वाइज कोडवर्ड्स की बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली इस तरीके से सब्जेक्ट करेंगे. So this is the manner how we are going to do the subject of economics. तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है. ये बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है. But with of course my knowledge, experience and your support, we are going to excel in this subject. It's not just going to be a matter of just passing. We are going to score very, 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 very good marks, and that we have to do, and we will do it. So guys, this is how we are going to do it. I just give you a view of our book. This is our new book, revised, and I even explained you one answer where we were just talking about qualities of good money, and with code word we have now memorized it. Dal dal पे जिराफ चींटी हाथी शेर. खाली लास्ट बात बोलूंगा, लेट्स सी आपने ये आंसर कितना याद किया. आंसर में देखना मत, देख भी नहीं पाओगे, मैंने स्क्रीन ऊपर कर लिया है. और मुझे बताओ कि ये पॉइंट क्या है. डाल डाल पे जिराफ चींटी हाथी शेर में जिराफ क्या है, जी क्या था? जिराफ. एनीबडी कैन ट्राई इट. जिराफ. कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर. जिराफ. जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. वेरी गुड पार्थ मेहता, वेरी गुड. ओके. शेर. जिराफ चींटी हाथी शेर. शेर शेर. स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू. चलो एक बार सारे पॉइंट्स बोल देते हैं. डाल ड्यूरेबिलिटी. डाल डिविजिबिलिटी. पे पोर्टेबिलिटी. जिराफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. चींटी कॉग्निजिबिलिटी. डाल डाल पे जिराफ चींटी. हाथी होमोजिनिटी. शेर. डाल डाल पे जिराफ चींटी हाथी शेर. जिराफ हो गया जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, चींटी कॉग्निबिलिटी, हाथी होमोजेनिटी और शेर स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो ना मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. क्यों नहीं आएगा? पूरी बुक आएगी, कैसे नहीं आएगी? Each topic on the tip of the tongue, man. Don't you worry. But slowly slowly. आज तो डेमो का एक लेक्चर मैंने खाली आपको आइडिया दी, सब्जेक्ट के बारे में बात की, इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, क्योंकि वही मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं. ओके गाइस, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इट विल बी मोर देन इनफ. सो विल स्टॉप नाउ. और आगे के लेक्चर्स के बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी. तो यू कैन इवन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड दे कैन आल्सो ज्वाइन आवर डेमो ग्रुप. They can contact the numbers that have been provided and accordingly they can also join us. Okay, have a nice day. Take care. Bye everyone. Okay, see you soon. Okay, take care. Bye bye. Okay guys, so I'm ending the lecture now. Hello. Yeah, I'll just end the lecture. You may leave if you want.